Like what? कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि किसी भी सिटी का उस एरिया का वहाँ के इंडस्ट्री में, वहाँ की जॉब मार्केट में क्या रोल होता है। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि एक सिटी का उस डेमोग्राफिक में और वहाँ की जॉब मार्केट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो इंडस्ट्री जो है या फिर जो वो पूरा का पूरा सेटअप जो वो सिटी की पहचान बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल आपने देखा ही सुना ही होगा, बैंगलोर इज़ कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट बिकॉज वहाँ पे एक बहुत लार्ज स्केल GCCs हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, wherein all the multinational companies का जो back end services are being enabled through these GCCs. So ये एक बहुत important role play करता है and that is why we would say अगर आपको टेक में कोई जॉब चाहिए या अगर आपको IT इंडस्ट्री में कोई जॉब चाहिए, it's always better to go to Bangalore, or a second option would be Hyderabad. So because these are large major cities जहाँ पे ये सारी establishment हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाती हैं। नाउ इससे एक और चीज़ होती है कि जिस सिटी में ये पूरे का पूरा ऐसा एनवायरनमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, सो दैट ऑल्सो ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ कंपटीशन, राइट। एंड जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, राइट। एक तो आपको उस तरीके की जॉब्स के लिए फ़ाइट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, बट द गुड थिंग इज़ यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विच other cities cannot offer you, right? And even if they are offering you, they won't be that competitive in nature in terms of your pay grade, let's say, or you have to compromise in certain other aspects. One should keep into mind कि जब भी वो जॉब मार्केट में निकले तो इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एनालाइज करें। नाउ अभी बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाउ इज़ मुंबई एज अ सिटी when it comes to job market, और वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसके लिए एम्प्लॉयज़ और द कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द जॉब मार्केट। So as per my experience, as per my understanding, बॉम्बे एक बहुत ही ज़्यादा heavily driven by financial sector है। So all the major financial establishments अगर आप देखोगे, all the major banks के जितने भी be it public sector banks or private banks or other major global financial institutions like JPMC, Morgan Stanley, so इन सभी head offices आपको बॉम्बे में ही मिलेंगे। Now दिस विल ब्रिंग इन अनदर आस्पेक्ट कि भाई बॉम्बे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस जॉब्स के लिए है, तो ऐसा नहीं है। बॉम्बे इज़ अ मिक्स ऑफ फाइनेंस प्लस टेक plus other sort of pharmaceuticals or manufacturing related jobs, but yes, primarily it is driven by the financial sector। तो ये आपको बहुत इसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के जॉब को टारगेट कर रहे हो while residing in Mumbai। Good market for finance enthusiasts, people who want to make their career in banking, people who want to make their career in let's say in investment banking or a stock market, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन शहर है मुंबई। मुंबई के साथ two things that comes with a city like Mumbai is that it's the real estate is very very costly, so एक typical 2 BHK flat afford करने के लिए on a rental basis you need to shell out some 50-60K, right, or maybe more depending upon the locality where you are living in. So for example, the place where I am residing, it's I am paying somewhere around 45K as a rent, and I'm based out of Navi Mumbai, not precisely accurately a Mumbai location. So that is the kind of numbers that you need to consider while making a move कि अब मैं यहाँ पे मूव करने वाला हूँ मुंबई में। अगर मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मेरे को इतना अमाउंट इसको बफर में रखना पड़ेगा, जॉब्स दैट आई कैन टारगेट। नाउ
good thing about Mumbai is that the culture here is supportive in terms of not need to worry about late working hours, because Mumbai local is always available late till late nights, and also the cab facility is always there, and it's very safe for female employees, female workers. So as it's a good place to be in. Then you need to plan your रोड मैप कि आपको कहाँ पे रहना है, हाउ मच काइंड ऑफ सैलरी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, क्या लॉन्ग टर्म इसके क्या मैं यहाँ से डिराइव करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द ROI आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मुंबई इज़ अ सिटी, इट हैज़ enormous amount of opportunities, but if you are not focused, or if you do not have a set road map कि मुझे यहाँ से कहाँ तक जाना है और किस करियर पाथ को टारगेट करना है और कहाँ तक मेरे को रीच आउट करना है, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग योर वे थ्रू दिस कॉर्पोरेट लैडर कि कैसे मैं यहाँ पे मूव करूँगा. दैट्स इट. सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस अबाउट लिविंग and working in Mumbai. If you have your experience as well, do share in the comment box.